के बारे में पूछूंगा। So, okay, today we have a listening session and where I'm telling you about Vivekanand and his great journey to the West. Sir, Beta, sir, who is Vivekanand? and I'm telling you, now listen to him. Listen about him. Sir, notes also we have to make. Yes, notes, vocabulary. Okay, so Vivekanand is a great man for us and he has done too much for our country. And once he went to America in Chicago Dharma Sammelan, and where the people of other countries as than America had come for their assembly, and in that assembly from India, Vivekanand was sent, and his speech that he delivered that time, even that speech is remembered today. So please listen to him and try to understand. Okay, this is listening comprehension, and you can also make the notes, you can also write the important points, and you must keep these things in your mind that some days these topics may be given to you for speaking. So I think you are ready to listen to it. So my dear friend, I'm starting. I'm telling about Vivekananda and his great journey to the West. So this journey was indeed an astonishing adventure. बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लिख लो आप. एस्टोनिशिंग, फटाफट साउंड को पकड़ोगे तो स्पेलिंग आएगी. This journey was indeed an astonishing adventure. The young Swami went into it at random. Random. देखो स्पेलिंग फटाफट से. Random. 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 Random with his eyes shut. होता ना ऐसे ही हो जाता है कई बार, चले गए ऐसे ही, like that. He had heard वेगली. लिखो वेगली, एडवर्ब है. लिखो आप, स्पेलिंग गलत हो तो ठीक कर लेना, मैं बोलूंगा अभी. वेगली, VAGUELY. ही हैड हर्ड वेगली. वेगली का मतलब धुंधला सा, पूरी जानकारी नहीं होना, थोड़ा बहुत पता होना, ऐसा कुछ है वहां पे, लाइक दैट. तो ही हैड हर्ड वेगली ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स to be opened someday somewhere in America, and he had decided to go to it. Although neither he nor his disciples, देखिए कनेक्टिव्स आ रहे हैं, फोकस करो आप लिसनिंग में. Although neither he nor his disciples, not his Indian friends, students, pandits, ministers or maharajas had taken any trouble to find out about it, about the रिलीजन्स, अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स. समझिए यहां पर आप, फिर से बोल रहा हूं मैं. एंड ही हैड डिसाइडेड टू गो टू इट, ऑल्दो neither he nor his disciples, not his Indian friends, students, pandits, ministers or maharajas had taken any trouble to find out about it. घबराओ मत बिल्कुल भी, कोशिश करो बस. He knew nothing,
neither the exact date nor the conditions of admission. थोड़ा सा सुना और चल दिए, कब होगा, क्या होगा, कैसे एडमिशन, कुछ नहीं पता। समझ में आ गई बात आपको? दोबारा पढ़ूंगा मैं इस पैराग्राफ को, कोशिश करो आप समझने की बस। He did not take a single credential with him. Credential, Sir, credential लिखो स्पेलिंग पहले, credential, 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 with him. He went straight ahead with complete assurance, as if it was enough for him to present himself at the right time, God's time. And although the Maharaja of Khetri is situated in Jhunjhunu district in Rajasthan. sir, As if it was enough for him to present himself at the right time, God's time. And although the Maharaja of Khetri had taken his ticket on the boat for him, and despite his protests, had provided him with a beautiful robe, R-O-B-E, that was so that was to fascinate, कोशिश करो, FASCINATE, fascinate American idlers no less than his eloquence, 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 ELOQUENCE. Neither he nor anybody else had considered the climate conditions and customs. He froze on the boat when he arrived in Canada in his costume of Indian pomp and ceremony. बस यहीं पर रुकूंगा मैं अब पूछो मीनिंग्स आप लोग। सर, अरे रोब्स का मतलब क्या होता है? लबादा, कपड़े, कपड़ों के लिए आ रहा है। ओके सर। सर ये एलोक्वेंस की स्पेलिंग रिपीट करना, मतलब सुनो बेटा, ELOQUENCE, यस सर। सर इसका मतलब इसका मतलब लिख लो आप, द एबिलिटी, इंग्लिश में लिखूंगा, द एबिलिटी टू स्पीक और राइट इन अ फ्लुएंट and emotionally moving manner. सर रिपीट करना। The ability to speak or write in a fluent and emotionally moving manner. ठीक है, और आप लिख सकते हो, लिखवा रहा हूं मैं आपको, इट कंबाइंस, लिखो कंबाइंस, COMBINES, कंबाइंस क्लियर कम्युनिकेशन विद एलिगेंट, लिखो एलिगेंट, एलिगेंट
कोमा लगाओ। पावरफुल लैंग्वेज, फोकस करो, पावरफुल लैंग्वेज टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, कोमा लगाओ। इंस्पायर, इंस्पायर और इवोक, लिखो इवोक, इवोक EVOKE, इमोशन, लिखो इमोशन, फोकस करो बस, कुछ मत करो, लिसनिंग पे फोकस करो 100%। इमोशन EMOTION इन एन ऑडियंस, मतलब ये बोलने की एक कला, लिखने की एक कला जो अपने पढ़ने वालों को या सुनने वालों को प्रभावित कर सके, एक शानदार तरीके से बोलने वाली चीज। और कोई बात? सर फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब आकर्षित करना। एलिगेंट। शानदार। सर इवोक। है इवोक मतलब एक चीज को पैदा करना, किसी के अंदर जागृति करना, किसी चीज को करने के लिए उसको प्रेरित करना, समझ गए? क्रीडेंशियल, है बेटा, क्रीडेंशियल। क्रीडेंशियल का मतलब कोई भी विश्वसनीय, कोई भी प्रमाण पत्र या कोई भी ऐसी चीज, कोई पेपर, अपन कहीं जा रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना अपने पास में, कहाँ से आए, क्या है क्या नहीं है, लाइक दैट। बेसिक्स मतलब बेसिक्स, आइडेंटिटी वगैरह वगैरह। नहीं 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 नहीं, तो यार आप कहीं किसी को मान लो रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, मेरी तरफ से जा रहे हो ना आप, तो आपके पास कोई पेपर तो होना चाहिए ना कि भैया फला जगह से ये आदमी आया है, इस सेंटर से आया है, इस कंट्री से आया है, कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या थोड़ी कोई भी चले जाएगा उसमें, समझ में आ गई बात? और आजकल तो बहुत सारी शादियों में भी ऐसा हो गया है भैया, मैंने सुना था कि अंदर ही तब घुसने देंगे, पहले कार्ड दिखाओ। एंट्री पे ही कार्ड देख लेंगे, कार्ड है, अरे साहब कार्ड तो भूल है, लेके आओ, बिना कार्ड के एंट्री नहीं है। अब वो क्या हो गया वहां पर, क्रीडेंशियल हो गया कि नहीं हो गया कि ये रहा कार्ड जी, ये लो, हो गया कि नहीं हो गया? आपकी कंपनी आपको किसी काम से भेज रही है और कंपनी सेंडिंग यू फॉर सम वर्क, जाओगे कैसे आप? आपके पास कुछ पेपर तो होना चाहिए ना कि ये देखो जी फला कंपनी से आया हूं मैं, या वहां का सर्टिफिकेट है। समझ में आ गया? और बोलो। सर एस्टोनेसिंग। आश्चर्यचकित, सर हम्म, सर ये वैगली का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने बताया था ना बेटा, बैगली का मतलब क्या होता है कि जैसे कहाँ है, कहाँ तू, कहाँ है ये, दिख ही नहीं रहा मेरे को, गौरव है कहाँ? आवाज किसकी आई थी अभी? गौरव की। तो दिख तो के हटा सर दो, मैं पीछे से हटाओ जितने भी लगा रखे हैं तुमने, ये सब हटा दो अपने अपने पीछे से। तुम, मैं गौरव को ढूंढ रहा हूँ, वहां मेरे को अनुज दिख रहा है बार 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 बार, हटाओ पीछे से, किसी कोई नहीं लगाएगा। तो बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास होती ना तो मैं तुम्हारे को बताता फिर क्या होती है ये चीजें। सर तब तो ऑफलाइन में तो लगा ही नहीं सकते। वो मैं सोच रहा था कि ये जवाब देंगे, ऑफलाइन में तो लगा ही नहीं सकते। बेटा वेगली का मतलब क्या होता है? धुंधला सा, अस्पष्ट, थोड़ा सा सुन लिया है ना, ज्यादा कुछ पता नहीं है, कैसे जाएंगे, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, मतलब कैसे वहां प्रवेश, कुछ नहीं पता है, हल्का फुल्का सा सुन लिया और जाने की तैयारी, ज्यादा जानकारी नहीं अपने को उसके बारे में, दैट इज वेगली। कुछ सुना था मैंने यार, कुछ ऐसे मतलब स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था, तो दैट इज वेगली। समझ में आ गई बात आपको? वेग का मतलब होता है बेटा धुंधला। अब यहाँ पर वेगली का मतलब धुंधलापन से, मतलब पूरी जानकारी के बिना। आगे बात समझ में? शब्दों को सीखो, ये इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कोई वर्ड? सर हाँ सर वेगली क्या होता है? बताया तो था अभी,
सर वाईफाई अभी अभी है। वेगली का मतलब अस्पष्ट, नॉट क्लियर। ओके सर। और कोई वर्ड? सर रैंडम मतलब नॉर्मली। ऐसे ही कुछ पता नहीं है, विद आईज शट, कुछ पता नहीं है, सुन लिया बस थोड़ा सा रैंडमली, ऐसे ही किसी ने चले चलो हो गया, बस कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं, रैंडमली का मतलब ये हो गया। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं, इसमें क्या है पैराग्राफ के अंदर, कि वो अमेरिका कैसे गए। थोड़ा सा सुन लिया किसी से, अमेरिका के अंदर शिकागो के अंदर एक धर्म संसद का प्रोग्राम था 1893 में, जिसमें सारे देशों के धर्म के लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया था कि भी भेजो अपने अपने यहाँ से। अब इंडिया में इन्होंने सुना विवेकानंद जी ने, अरे अच्छा चलो अपन भी चलते हैं। क्लियर हो गई बात? अमेरिका में कहीं है, किसी टाइम पे, इतना ही पता था, कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं था। इट इज मतलब वेगली। आगे समझ में बात? अब वो आप चले गए, और उनका चलो ऐसा हो रहा है तो मैं जाऊंगा, बाकी कुछ पता नहीं उनको कब है, कहाँ है, अमेरिका में है ये पता था बस। क्लियर हो गई ये बात आपको? और इसके अलावा भी किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी, ना राजा को ना महाराजा को। 1893 में तो अंग्रेजों का राज था, राजा महाराजा ही होते थे, किसी को नहीं पता था, बस जाना है। किसी ने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि चलो चलेंगे। क्लियर? और कुछ इनके पास में कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कपड़े ढंग के नहीं। तो एक महाराजा थे खेतड़ी के, उन्होंने उसको एक कपड़ा वपड़ा पहना दिया कि भी जा रहा है तो थोड़ा सा इज्जतदार लगे। टिकट विकेट करवा दी इन्होंने, नाव की, बोट से, ऐसे करके उन्होंने करवा दिया। आगे बात समझ में? अब आ जाओ, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इस पैसेज को मैंने आइडिया दे दिया है आपको, अब फोकस करना। दिस जर्नी वॉज इंडीड एन एस्टोनिशिंग एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें अपने को रोमांच पैदा हो, एडवेंचर। द जर्नी वॉज इंडीड एन एस्टोनिशिंग एडवेंचर। द यंग स्वामी वेंट इनटू इट एट रैंडम, बिना किसी तैयारी के, रैंडम, विद हिज आईज शट। चले गए परीक्षा देने ऐसे ही, पता ही नहीं, चलो आज हिंदी का था, हम तो सोच के आए थे हिंदी का, यार तो इंग्लिश का हो रहा है यहाँ पे। चले गए ऐसे ही, लाइक दैट, कोई पता ही नहीं, चल दी है बस, देखी जाएगी, चलो यार रवाना हो, फिर देख लेंगे, रास्ता तो ढूंढ लेंगे। तो लाइक दैट ही हैड हर्ड, सुनो अब, ही हैड हर्ड वेगली, एडवर्ब आ गया ना यहाँ पर, ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स टू बी ओपन्ड, होने वाली थी, समडे, किसी दिन हो गया ना वेगली, समवेयर इन अमेरिका, बस ये पता था। एंड ही हैड डिसाइडेड टू गो टू इट, although neither he nor his disciples, उनके भी चेले थे, डिसिपल्स, शिष्य, not his Indian friends, students, pandits, ministers or maharajas had taken any trouble to find out about it. क्लियर हो गया? किसी ने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, कहाँ है, कब है। वह है, स्वामी जी ने कहा मैं जाऊंगा, कि जाओ, पता तो लगा लो कब है, कहाँ है, अमेरिका में किस जगह, ना कुछ नहीं, किसी ने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ पर पता है क्या, जहां चाहा वहां रहा, आप जहां तक रास्ता मिले चलते जाओ, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा आपको, अगर आप पॉजिटिव हो तो। मैंने तो ये सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है सीखने के लिए, अपनी कंट्री के बारे में जानने के लिए, क्या कैसे था। क्लियर हो गया? और पता है, he knew nothing, neither the exact date nor the conditions of admission। अंदर कैसे जाओगे, ना डेट का पता, ना है किसका पता। he did not take a single credential with him, कोई कागज नहीं लेके गया अपना जो प्रमाणित करता हो कि भैया वहां से आया है। he went straight, चला गया वो तो सीधा, ahead with complete assurance, आश्वासन, एक आश्वासन था केवल उनके पास में, as if it was enough for him to present himself at the right time, God's time। समझ में आ गया?
कुछ भी नहीं पता है, चलो चलते हैं अपन, तो इतना ही बहुत है बस। पहुंच जाएंगे, जो टाइम होगा, अच्छा टाइम होगा, भगवान का पहुंच जाएंगे अपने आप। ये होता है विश्वास। एंड ऑल्दो द महाराजा ऑफ खेतड़ी हैड टेकन हिज टिकट, अमेरिका जाएंगे तो उड़ के थोड़ी जाएंगे, हैं? टिकट भी ले लिया। ऑन द बोट फॉर हिम, ऑन द बोट फॉर हिम का मतलब जल यात्रा, जहाज से या नाव से, क्योंकि एरोप्लेन से तो यात्रा बहुत महंगी होती थी उस जमाने में। जहाज से अभी भी जाते हैं लोग, जहाज से अभी भी जाते हैं लोग, लंबी होती है वो थोड़ी सी। एंड डिस्पाइट हिज प्रोटेस्ट्स had provided मतलब the king of, sorry, the Maharaja of Khetri had provided him with a beautiful robe. मैंने बता दिया रोब का मतलब कपड़ा, लबादा। That was to fascinate American idlers no less than his eloquence. Neither he nor anybody else had considered, किसी ने भी सोचा ही नहीं कि भाई कैसा मौसम होगा, ना कुछ नहीं, चले जाओ। had considered the climate conditions and customs. अरे आप भी कहीं बाहर जाते हो तो हिसाब से लेके जाते हो ना कपड़े, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, सर्दियों में जा रहे हैं, तो यार कुछ गर्म कपड़े, कुछ नहीं भाई साहब, तो ऐसी चल दी है जो भी था। देखो आप, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, चल दिए। खेतड़ी के महाराजा ने उनको एक कपड़ा दे दिया था, रौब लबादा की, भाई पहन ले, जिससे कि कपड़े का अच्छा प्रभाव पड़ेगा वहां के लोगों के ऊपर, ऐसे देखेंगे तो। और किसी ने भी पता लगाने की कोशिश ही नहीं की भाई क्लाइमेट कैसा होगा, उसके हिसाब से भी कपड़े ले जाओ ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों का एक समझो जरा, हम कौन है, हम हमारे पुरखे जो थे वो कैसे थे, पता होना चाहिए आपको, प्राउड फील होना चाहिए आपको। ही फ्रोज ऑन द बोट, अब भाई साहब नाव पे चले जा रहे हैं, गर्म कपड़े हैं नहीं, क्या होगा फिर? ठंड का टाइम, अमेरिका में तो वैसी ठंड पड़ती, क्या हुआ होगा? जम गए। कुछ कंबल वंबल ले आते, जर्सी स्वेटर ले आते ना, चलो देखी जाएगी। He froze on the boat when he arrived in Canada in his costume of Indian pomp and ceremony. जिस प्रकार का भारत के सन्यासी अपने कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार के कपड़ों में वो कहाँ पहुंच गए? कनाडा पहुंच गए, और रास्ते में तो कुल्फी जम गई उनकी। समझ में आया कुछ आप लोगों को? कुछ पूछना चाहते हो? कोई वर्ड, कोई मीनिंग? यार कैमरे चालू रखो। सर सर फिर जब उनको ठंड लगी होगी वहां पे, तो फिर वो वहां पे क्या किए होंगे? अब पढ़ रहे हैं, आगे आ जाओ। यस सर। आओ आगे। अब ये तो एक जो मैंने अभी बताया है ना, ये तो मोटी मोटी सी बात एक आ गई कि भाई हाँ, इस प्रकार से उनको कुछ भी पता नहीं था, वो चले गए, रवाना हो गए, टिकट विकेट सब उनका हो गया, ऐसे हो गया। अब कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां पहुंचे, कैसे हुआ, क्या हुआ, ध्यान से सुनो। एक पैराग्राफ और पढ़ूंगा, बस ध्यान से सुनना। अब शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, सुनिए। कैमरे चालू रखो रे, रिमूव कर रहा हूं मैं आज इनको, हटना जरा, देना डंडा। ना 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 सर ना, डंडा नहीं तो बटन चाहिए। माउस देना, माउस। क्या नाम की चीज नहीं तुमको? मिल मत जाना किस दिन मेरे को ऑफलाइन में। नो नो। और तू तो घर कल ही चूक गया मैं बेटा। कल कहाँ? कल तू तो घर आया था मेरे, मैं पकड़ लेता मैं तेरे को, तू आया और मैं निकला हूँ, मतलब कोई 5-7 मिनट का ही डिफरेंस रहा होगा बस, तो बताता मैं तेरे को। नो। अब सुनिए ध्यान से आप, कैसे शुरुआत हुई, क्या हुई। ही लेफ्ट बॉम्बे, नाउ मुंबई, नाउ द नेम ऑफ बॉम्बे इज मुंबई, बट दैट टाइम इट वाज बॉम्बे। He left Bombay on 31 May 1893। लिख लो, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, अभी तो मैंने पूछे नहीं है आपसे।
कल पूछूंगा, लिख लो नोट्स। He left Mumbai on 31 May 1893 and went by way of Ceylon. By way of Ceylon. कहां से होके गए? सीलोन मतलब श्रीलंका। पेनोंग लिख लो, क्वेश्चन बनेंगे। सीलोन, CEY, मैं बोल रहा हूं CEYLON, कोमा लगा लिख लो। पीनांग, पेनांग PENANG, कोमा सिंगापुर, कोमा हांगकांग। सीधे अमेरिका नहीं पहुंच गए, बैठे हवाई में और पुरे से उड़ गए। कहां होके गए, कैसे कैसे होके गए, देख लो। सर हवाई जहाज में थोड़ा गए थे। बता दिया ना, उसमें गए थे बोट में। सर उधर की जानी है हैं? अमेरिका तो इस साइड का, फिर उधर तो जा रहे हैं सिंगापुर। क्यों जा रहे हैं का क्या मतलब है? चले जाएंगे जहां उनको जाना होगा। तू ज्यादा सरपंच बन रहा है क्या? वो कहीं से भी जाए, कैसे भी जाए, उनकी मर्जी। क्यों गए थे? तेरे को जवाब दें सारे, हम क्यों गए थे? अभी सुन ले आगे। हाँ सुनो, सवाल भी ऐसे ऐसे करेंगे जो पूछो मत। पहले ये ध्यान रख ले कहां गए वो। क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि क्यों नहीं सीधे अमेरिका उड़ गए। सुनो फिर से। He left Mumbai on 31 May 1893 and went by way of, मतलब रास्ते से। by way of का मतलब किस रास्ते से? वो रास्ता। समझ में आ रही मेरी बात? अब लगे यार, आपको मान लो अभी कश्मीर जाना हो, आप क्या करोगे? पहले दिल्ली जाओगे, दिल्ली से फिर और कहीं जाओगे, फिर वहां ऐसे जाओगे ना। तो बाय वे ऑफ सीलोन, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग, and then visited Canton and Nagasaki. Canton, CANTON, सबके पहले लेटर कैपिटल आएंगे, प्रॉपर नाउन है। And Nagasaki. Where is Nagasaki? जापान। Japan. लिखो thence, चुपचाप लिखो thence। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। thence लिख लिया, THENCE। thence का मतलब बता दूं क्या होता है? पता है किसी को? वहां से। सर क्या सस्पेंस बनाया आपने? चुपचाप लिख ले, सस्पेंस बनाया। बातों में मैं चुपचाप लिखो, कोई नहीं बोलेगा बीच में। मुझे पता है तुम्हारी सब, अभी 2 मिनट में तुम सारे कोई नहीं बोलेगा बिल्कुल भी। प्लेस के लिए यूज होता है। thence तो प्लेस, जहां से, तो प्लेस के लिए यूज होगा, काय के लिए यूज होगा? जहां। फ्रॉम देयर भी कह सकते हो, पर thence भी आप ध्यान रखो। thence तो सर went by land। by land का मतलब जमीन से, बस से या ट्रेन से, या समझ में आ गई बात आपको? अभी कैसे यात्रा की उन्होंने? पानी से, पानी में, जल यात्रा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं बेटा? thence he went by land। अब समझ में आ गया? by air, by water, by land, समझ में आ गया? सीख लो बेटा चीजों को। टू योकोहामा by land after reaching Nagasaki. From there he went by land। समझ में आ गया? कहा? टू योकोहामा। लिखो स्पेलिंग योकोहामा। समझ में आ गया होगा कहां की जगह है? कहां की है? चाइना। चाइना नहीं है, जापान है। ये सर जापान। मैं तो सोचा पहचान लिया होगा। सीकिंग ओसाका, ओसाका भी एक जगह का नाम है। सीकिंग ओसाका, कोमा लगाओ, क्योटो एंड टोक्यो। सर जापान में ही घूम रहे क्या अभी तक? अभी जापान में ही है तो क्या दिक्कत है तेरे को यार? नहीं सर, अमेरिका जाना है ना सर। जहां चले जाएंगे तो अमेरिका। एवरीवेयर,
everywhere, both in China and Japan, his attention was attracted by all that might confirm his hypothesis. Conviction, इसकी स्पेलिंग लिखो hypothesis, ये आपको ढूंढने हैं मीनिंग्स आवाज, HYPO, hypothesis, HYPOTHESIS, hypothesis. Conviction, alike, एक साथ है conviction alike, CONVICTIONALIKE, of the religious influence of ancient India over the empires of the Far East and of the spiritual unity of Asia. पढ़ूंगा दोबारा एक बार, चिंता मत करो. At the same time, the thought of the ills from which his country was suffering never left him, and the sight of the progress achieved by Japan reopened the wound. होता ना कि अपन तो ऐसे कैसे ही रह गए, और अपन कहीं बाहर दुनिया में जाके जब देखते हैं तो देखते हैं यार इन्होंने कितना डेवलपमेंट कर लिया. और विवेकानंद जी ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत को एक बहुत अच्छा पावरफुल कंट्री बनाना चाहते थे. ऐसा व्यक्तित्व था उनका. आई थिंक आपने सबने विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा. आज आप अपने गूगल पे चेक करना, थोड़ा सा लिखना विवेकानंद, अबाउट विवेकानंद, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी. आपको पता होना चाहिए बेटा, वो मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से. हमें हमारे हीरोज हैं, हमारी कंट्री के जो हीरोज हैं, जो नायक हैं, द पर्सन्स, द पीपल हु डिड टू मच फॉर आवर कंट्री, वी मस्ट नो अबाउट देम यार. अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं. He left Mumbai on 31 May 1893 and went by way of Ceylon, Penang, Singapore, Hong Kong, and then visited Canton and Nagasaki. Thence he went by land to Yokohama, seeking Osaka, Kyoto, and Tokyo. Everywhere, both in China and Japan, चाइना में भी गए थे वो, both in China and Japan, his attention was attracted by all that might confirm his hypothesis, convictional alike, of the religious influence of ancient India over the empires of the Far East and of the spiritual unity of Asia. At the same time, the thought of the else, होता ना कि यार सुनो कैसे, आज हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, मान लो अमेरिका के अंदर, अब हम वहां पर देखते हैं जाकर के कि यार जो हमारी चीजें हैं ना, इनको ये लोग फॉलो कर रहे हैं. हमारी चीजों को फॉलो कर करके ये लोग कितने आगे चले गए, और हम अपनी चीजों, जो हमारी अपनी चीजें थी, हम वही की वही हैं, और भी ज्यादा हम तो. अब होता ना कई बार, देखो कई बार क्या होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि दूसरे की किताब लेकर के भी वो बहुत आगे निकल जाता है, और जिसके पास खुद की किताब होती है ना, सारे चीजें जिसके पास में अवेलेबल होती हैं,
वो उनका यूज नहीं कर पाता है, वो उसके बाद और दूसरे उसका यूज कर लेते हैं। समझ में आ गई बात आपको? आ गई? ये वाली चीज यहां पर कही गई है। और जब उसने देखा ना, एंड द साइट ऑफ द प्रोग्रेस अचीव्ड बाय जापान रीओपन्ड द वुंड, घाव तो पहले लगा हुआ था कि यार हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं, और जब देखा हमने यार ये तो बहुत आगे, यार हम तो बहुत पीछे रहे, तो घाव क्या होता है, हरा हो जाता है कि यार हमें भी तो आगे जाना है। आगे बात समझ में? बस आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन। थैंक यू। सर हाँ, सर स्वामी विवेकानंद को ये भी कैसे पता चला था कि वहां पे कोई सम्मेलन हो रहा है? बताया दिया होगा किसी ने, समझे? पता चल जाता है यस कई बार सर। चीजों का ऐसे तो सर ये तो बहुत दूर है ना अमेरिका तो। फिर भी पता चल जाता है चीजों का, मतलब दूर जरूर है लेकिन कनेक्टिविटी तो होती थी ना पहले भी। यस सर। हाँ, कनेक्टिविटी तो पहले भी होती थी ना बेटा, किसी ना किसी रूप में होती थी कनेक्टिविटी। ये बात है, पहले भी लोग बाहर जाते थे, वहां से आते थे, ऐसा नहीं है कि अभी होने लगा है, पहले भी होता था। और हमारे तो कई 1000-2000 साल पहले भी हमारा कंट्री तो सोने की चिड़िया कैसे कहलाता था, इतना बिजनेस होता था हमारे देश के अंदर, यहाँ से जहाज भर भर के जाते थे दूसरे देशों के अंदर, वहां हम बेचते थे अपनी चीजों को, वहां से लाके यहाँ बेचते थे। और जब लोगों को पता चला कि ये देश सोने की चिड़िया है, तभी तो दूसरे लोगों ने हमला किए हमारे ऊपर। काहे को किए, क्यों किए थे? जो यहाँ से गया वहां जाके बता, अरे यार वो तो बहुत यार पावरफुल कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है यार, अच्छा लुटेरों ने सुना, अच्छा बड़ा माल है वहां पे, चलो आगे बात समझ में? ऐसे होता था बेटा, लोग आते जाते तो थे ही, किसी ना किसी तरीके से, हवाई जहाज नहीं होंगे तो जहाजों से आते जाते थे, फिर पैदल भी चलते थे। अब जैसे चाइना से अपना होता था तो वो चाइना चाइना तो अपन जा सकते हैं बाई रोड भी, तो पहाड़ों का जो रास्ता है, कभी मैं आपको एक वो लेसन भी है मेरे पास में, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा, सुनाऊंगा मैं आपको। तो ये चीजें हमारी लिसनिंग को भी इम्प्रूव कर रही हैं, हमारी नॉलेज को भी बढ़ा रही हैं, और हम अपने लोगों के बारे में, जो इतने ग्रेट लोग थे उनके बारे में भी हम जान रहे हैं। तो आई थिंक इट इज यूजफुल इन मेनी वेज। थैंक यू वेरी मच।